Assalamu alaikum students. Okay, students, today we are doing conic section. That means we will do the circles, parabola, hyperbola, ellipse, etc. It's called the conic section. The quadratic functions. They are called the quadratic functions. Quadratic functions and their graphs. Quadratic functions and their graph. The general quadratic function is ax square plus by square plus cx plus dy plus e. This is the general quadratic function in two variables. This is the general quadratic function in two variables x and y. In plane geometry, so we will take the two variables. There are two variables in plane geometry, not more than two. In plane trigonometry, in plane trigonometry, there are two variables x and y. And in three dimension, there are three variables x, y, and z. Here we are doing the plane geometry. So there are two variables x and y. So this is a quadratic equation, general quadratic equation in two variables. Marrying shape.
So this is the general quadratic equation in two variables x and y. Sometimes this is ax square plus by square plus cx plus dy. This is the general quadratic equation in two variables, or the quadratic function in two variables. If a and b has the same value, if a and b is equal, this is the first case. If a and b are equal, that means the coefficient of x square and y square are equal. The equation will be of a circle. If a and b are equal, that means the coefficient of x square and the coefficient of y square are equal. This will be the equation of a circle. Ayman Akmal. When a and b are equal, it will be the equation of a circle. They may be equal or not equal, whatever be the value of these one, but a and b, the a and b, the coefficient of x square and the coefficient of y square must be equal. Then it will be the equation of a circle. It will be the equation of a circle. When a and b, if a and b equal, it will be a circle. If a and b if a and b are not equal, but both are positive, if a and b are not equal, but both are positive, it will be the equation of an ellipse. If a and b are equal, if it is 2, it should be 2. It is 4, it should be 4. It is 5, it should be 5. So the equation will be of a circle. If a and b are not equal, but both should be positive, both must be positive, then it will be the equation of an ellipse. If it is 2, that should be, they may be 3. It is 4, it may be 5, not equal. If they are equal, it will be the equation of a circle. If they are not equal but positive, equation of an ellipse. Equation of an ellipse. If either A
or B is negative, any one of them, A and B, any one of them is negative and one is positive, one is negative, it will be the equation of an hyperbola. एक इसमें से नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा. Either A or B is negative. It will be an equation of an hyperbola. It is necessary one of them must be positive, negative. One of them must be negative. And the fourth case is either A or B is zero. It will be the equation of a parabola. इन दोनों में से कोई एक जो है वो जीरो होगा, यानी या तो एक्स स्क्वायर, नहीं ये जीरो होगा तो एक्स स्क्वायर गायब हो जाएगा, जीरो इंटू एक्स स्क्वायर विल बी जीरो, या ये जीरो होगा तो वाई स्क्वायर गायब हो जाएगा, यानी सिर्फ एक स्क्वायर मौजूद हो, एक्स स्क्वायर मौजूद हो या वाई स्क्वायर मौजूद हो. सो दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला. सैयद मोहम्मद हसन. सैयद मोहम्मद हसन. So you have to remember this is the general quantity function. If A and B are equal, it will be the equation of a circle. If A and B are not equal, but both are positive, it will be the equation of an ellipse. Either A or B is negative. One of them is negative. In A and B, one of them is negative. It will be the equation of an hyperbola. Either A or B is zero. One of them is zero. So it will be the equation of a parabola. Mahnur 1190. So these are the four cases: circle, ellipse, hyperbola, and parabola. Circle, ellipse, hyperbola, and parabola. Now we will do the circle. We will do each of them. Now we will discuss each of them. The first one is the circle. So we are discussing the circles. So we are discussing the circles.
It is said, when there is will, there is way. When there is will, there is way. इस किस्म के एक्सक्यूजेस, लाइट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बेटा कोई पहली दफा तो नहीं हो रहा। ये पाकिस्तान है, यहाँ ये सब चीजें चलती हैं, लोड शेडिंग हो रही है, इसका कुछ इंतजाम करके रखो। अटेंडेंस का मसला नहीं है, अटेंडेंस तो आपने अटेंड कर ली क्लास, अटेंडेंस हो गई, लेकिन आप पढ़ेंगे कैसे? आपका सिर्फ अटेंडेंस पर जोर होता है कि अटेंडेंस लग जानी चाहिए, पढ़ाई हो या ना हो, पढ़े हम या ना पढ़े, बस अटेंडेंस हो जानी चाहिए। ये क्या अटेंडेंस के लिए फीस देते हो तुम लोग? सिर्फ अटेंडेंस के लिए फीस देते हो या पढ़ने के लिए फीस देते हो? तो आपका मेन गोल जो है, मेन एम जो है, आपका टारगेट जो है स्टडी होना चाहिए। अटेंडेंस तो उसकी जिम्नी चीज है, जब स्टडी करने के लिए आओगे तो अटेंडेंस तो ऑटोमेटिकली लग जाएगी, वो ऑटोमेटिकली अटेंडेंस हो जाएगी जब आप आओगे पढ़ने के लिए। तो वो तो उसका एक सप्लीमेंट्री वो है, असल चीज तो आप पढ़ने के लिए आपने फीस दी है, यहाँ पढ़ने के लिए आते हो, अटेंडेंस बस लगा देना, लाइट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, अरे भाई ये कोई नई चीज तो नहीं है, ये तो रोज का मामूल है हमारा। यू मस्ट गेट रेडी फॉर दैट वन, आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। अब हमारी ये अभी 10 बजे तक लाइट चली जाएगी, इसका मतलब जो आगे है मैं नहीं पढ़ाऊंगा क्या, बंद कर दूंगा क्लास? उसका कोई अरेंजमेंट करके रखा हुआ है, जैसे ये नेट है, वाईफाई है, वो उसके लिए हमने पावर बैंक लगाया हुआ है, लाइट चली गई तो चले पावर बैंक से वो वाईफाई काम करता रहेगा। हाँ, पीछे से नेट बंद हो जाए वो अलग बात है, पीछे से नेट बंद कर दे वो क्योंकि ये केबल नेट है हमारे पास, तो वो फिर अलग मसला है। लेकिन जनरली वो क्या होता है कि वो लाइट तो 10 बजे चली जाएगी, आपकी क्लास तो 11:40 तक है, तो वो मैं बंद कर दूंगा क्या क्लास? ये रोज का मामूल है मेरा तो, और ये मेरी क्लास का रोज का टाइम है, पूरे सेमेस्टर का ही टाइम चलेगा। और बिजली वालों का तो अपनी मर्जी है, वो जिस वक्त भी चाहे बंद कर दे, उसका हमने इंतजाम करके रखा है ना, 400-500 रुपए का पावर बैंक आता है, वो लगा ले, उसमें वाईफाई चल पड़ेगा नेट आपका। लेकिन ये एक्सक्यूज कर दे लाइट चली जाएगी तो मैं भी क्लास नहीं लूंगा या मैं भी क्लास नहीं लूंगी। हाँ, नेट पीछे से केबल नेट बंद हो जाता है तो वो केबल नेट तो उनके अपने वो लगे हुए होते हैं, यूएस वो क्या क्या कहलाता है, उनके वो बैकअप होता है उनके पास, वो केबल बंद अमूमन नहीं करते तावक्त के कोई खराबी ना आ जाए केबल में, वहां से उनकी वो आता रहता है केबल। हमारे पास सिर्फ वाईफाई नहीं चलता लाइट बंद होने की वजह से, तो उसके लिए हमने पावर बैंक का इंतजाम किया हुआ, पावर बैंक लगा देते हैं, 2-1 घंटे निकाल देता है वो भी। तो बेटा व्हेन देयर इज विल देयर इज वे, कोई आपकी विल होगी तो वे भी बनेगा। 20-30-25 हजार के मोबाइल ले सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं ले सकते। और ये दूसरी बात, ये तो मैंने वाईफाई का बताया, और ये मैं लैपटॉप पे पढ़ा रहा हूँ, लैपटॉप की अपनी बैटरी है, इसका अपना बैकअप होता है, लाइट चली गई तो ये भी चल चल 1.5-2 घंटे तो चल ही जाता है कम से कम। तो कुछ इसका आपको इंतजाम करना है, ये मुझे मैसेज मत भेजते रहा करो कि मेरी लाइट चली गई तो मैं तो अब क्लास नहीं लूंगा, और वो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अरे भाई कोई ये कोई पहली दफा नहीं हो रहा, हम इसके आदी हैं, हमें इसको करना चाहिए। अब कोरोना फैला तो उसका इंतजाम तो किया है ना लोगों ने, मुंह पे मास्क लगा ना करें तो वो अलग बात है, लेकिन उसका है तो सही इंतजाम हमारे पास, मास्क है, सैनिटाइजर है, और बहुत सारी चीजें हैं जो हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। कोई मेडिसिन नहीं है, कुछ नहीं है, तो हमें एहतियात तो करनी है। तो ये सब क्या करें बेटा। दूसरी बात ये कि अटेंडेंस लगा दें, जब आप क्लास में एंटर होते हैं तो आपकी अटेंडेंस हो जाती है ऑटोमेटिकली। वेटिंग रूम से जब मैं आपको उसमें एंटर करता हूं, क्लास में अलाउ करता हूं, एडमिट करता हूं, तो मैं आपकी अटेंडेंस मार्क करके, प्रेजेंट मार्क करके आपको उसमें अटेंडेंस, उसमें क्लास में एडमिट करता हूं, ऐसे नहीं करता। तो ये बार बार कहना मेरी अटेंडेंस लगा दे, मेरी अटेंडेंस लगा दे, यू आर जस्ट डिस्टर्बिंग द क्लास।
तो पूछने की चीज नहीं है कुछ। स्टडी के बारे में कभी नहीं पूछना, उसके लिए कोई मैसेज नहीं भेजना। बस मैसेज का मेरी अटेंडेंस लगा दे, मेरी अटेंडेंस लगा दे। अरे तुम अटेंडेंस के लिए यहाँ फीसें देते हो? बड़े अफसोस की बात है, बच्चे तो नहीं हो तुम लोग। यहाँ पढ़ने के लिए आते हो भाई, पढ़ने पर ज्यादा तवज्जो। अच्छा, अब हम पढ़ रहे हैं सर्कल। सबसे पहले सर्कल, और दूसरी बात ये कि अगर आपके पास वो है तो आप कुछ ये भी कर ले, आप से मोबाइल से क्लास ले लिया करें। मैं मोबाइल से क्लास नहीं ले सकता इसलिए कि ये रिकॉर्ड होती है मेरे पास। आपने रिकॉर्ड तो नहीं करना, आपने डायरेक्ट क्लास लेनी है। आप मोबाइल से भी क्लास ले सकते हैं, मैं इसलिए नहीं ले सकता कि हमने रिकॉर्ड करना होता है, हमें रिकॉर्डिंग चाहिए। लेकिन आप लोग तो मोबाइल से भी ले सकते हैं बेटा। अगर आपकी लैपटॉप नहीं काम कर रहा तो आप मोबाइल से ले लें क्लास जूम पे, कोई मुश्किल तो है नहीं। ओके, सर्कल, इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन, ये तो क्वाड्रेटिक की जनरल इक्वेशन मैंने बताई थी आपको। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इक्वल टू c। This is the standard equation of a circle. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी उनके कोफिशिएंट 1 1 होने चाहिए। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए और दैट शुड बी 1 1। और प्लस 2gx प्लस 2fy इक्वल टू 0, ये हमारे पास होना चाहिए। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। एंड द शेप ऑफ द सर्कल क्या है? दिस इज द सर्कल, दिस इज द सेंटर। क्या है सेंटर? -g, -f, this is the center. And from center to the circle, this distance is called the radius, and this is the point P xy. The center of the circle is -g, -f, and the point P is xy, and the distance from center to the point P is called the radius. The distance from the center to the point is called the radius. तो ये इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है सर्कल के, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इक्वल टू c। अगर हमें इस किस्म की इक्वेशन दी जाए सो वी विल फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस। बाज़ औक़ात हमें सेंटर और रेडियस दिया जाता है और हमें कहा जाता है इक्वेशन बनाए, और समटाइम्स वी आर गिवन द इक्वेशन, वी आर आस्क्ड टू फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस। सर्कल में ये अमूमन दो चीजें होती हैं, सेंटर, रेडियस और इक्वेशन, ये तीन चीजें, सेंटर, रेडियस एंड इट्स इक्वेशन। तो हमें अगर इक्वेशन दी जाएगी तो हमसे पूछा जाएगा कि सेंटर और रेडियस बताएं,
और हमें सेंटर और रेडियस दिया जाता है तो हमसे कहा जाता है कि इक्वेशन बनाएं। तो ये दो चीजें होती हैं, या तो इक्वेशन बनाना है या सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करना है। इक्वेशन दी जाएगी, we will find center radius. If the center and radius are given, we will find the equation. ये और इसकी डेफिनेशन क्या है सर्कल की? सर्कल is the locus of all the points. These are the points. This is called the locus. The locus of all the points which are moving in such a way that its distance from a fixed point always be same. The distance locus of all the points, ये points हैं, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ये points है. Locus माने path of the points. Locus means the path of the point. If a point moves in such a way that its distance from a fixed point always be same. ये point यहाँ पर होगा तो ये distance center से, fixed point से, यहाँ पर होगा तो ये distance, ये तमाम distances equal हो तो ये क्या बनेगा? Circle बनेगा. Circle is the locus of all the points which are equidistant from a fixed point. That fixed point is called center. And that equal distances are called radius. Radius is a distance. This is not a point. Center is a point. Center is a point and radius is a distance. Length. ये यहाँ से यहाँ तक का distance. Length in between the 2 points. That is the radius. ये point यहाँ पर move कर जाता है. यहाँ से fixed point से distance. ये भी इतना ही होगा जितना ये है. So that is called the radius, the equidistance. The equal distances are called radius. And the fixed point is called center. तो ये आपने याद रखना है. ओके. अब हम करते हैं इसका, अगर हमें इक्वेशन दी जाए तो हम कैसे सेंटर और रेडियस निकालेंगे, और अगर हमें सेंटर और रेडियस दिया जाए तो हम कैसे इक्वेशन बनाएंगे. ये दो चीजें मैं आपको बता दूं, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं. यहीं पर फाइंड द इक्वेशन. If center minus G minus F and radius